So hi everyone, this is once again your educator Anup Kumar Singh, and this is kind of a small information about me. The UPSC and the PCS aspirant clear pre in 2017, WBCS 2017 as well. After a long time, I'm uploading the video because there is some problem happened in my life. So because of that, I got stuck. Anyway, let's start today video learning session. And today we are going to start the class 9 history lesson number 2, the first part, that is the socialism in Europe and the Russian Revolution. Now, whenever there is a revolution, it is clear to all of you that if there is a revolution, there would be some cause, there would be some authority, and there would be some that power. So always make sure revolution जब भी होती है उसके पीछे कोई पावर होती है. तो यहाँ पे हम दो चीज़ जानेंगे, एक जानेंगे सोशलिज्म किस तरीके से आया एंड दूसरी जो रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ. Now, if I start about the Russian Revolution, let me clear you that this Russian Revolution was started against the kings, right? Against the kings, that is the czars, ZARS, czars. Okay, now let me pick the pen. Against the czars. Okay, now in some might be in some book you can see that this czars would be written as the CZARS. Now, what happened? These czars, the Russian kings were known as the czars, and we will see that how the people of France and people of Russia, what are the things happened that gradually that gradually bound to start the Russian Revolution. We will cover the Russian Revolution in the other part. So now onwards, I'm just erasing this, and let me start the main theme of today's chapter, that is the uh, socialism in Europe and the Russian Revolution. Now, what happened? Altogether, we have in our last session, in our last lesson, we have seen about the French Revolution, and I hope that the French Revolution is clear to all of you. Now, we have seen that the French Revolution has started in which year? If I'm not wrong, it is started in the year 1789, that is the 1789. Okay. Now, inspired by the French Revolution, new ideas about individual rights and societal change began to be discussed in Europe. Now, what is societal change? The things which gradually happened, यानी ध्यान से सुनना, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी थी फ्रांस में, एज ए रिजल्ट वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्टेब्लिश की गई और अन्य दूसरी अच्छी चीज़ें आई. So inspired by the French Revolution in all across the Europe after the defeat of the battle in of Waterloo, in which the who got defeated, that Napoleon got defeated. So French Revolution के started खत्म होने के बाद, वाटरलू में नेपोलियन की हार होने के बाद, अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में डिफरेंट इंडिविजुअल राइट्स के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, उनके हक के लिए डिमांड होना, बातें होना, चर्चा होनी शुरू हो गई थी. और उसका इंस्पिरेशन क्या था? उसका इंस्पिरेशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन. नाउ व्हाट हैपेंड? these things gradually started discussions among the society, and later on from the Europe it also crosses the European borders and it reach in the India. आप देखोगे कि सोसाइटल चेंज की जो बात है, समाज में जो बदलाव आया, जो सोशलिज्म आया, वो आया फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद. और वो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, वो दूसरी जो कॉन्टिनेंट्स थी, देश थी भारत में, चाइना में, अलग अलग जगहों पर, वहाँ भी साथ साथ आए. तो क्या हुआ? इन चीज़ों को क्या बोला गया? इन चीज़ों को बोला गया सोसाइटल चेंज. इट मीन्स द न्यू आइडियाज विच इमर्ज्ड after the French Revolution, right? At the same response to complete societal change varied in the Europe, not only in the England but also in the that Russia, Hungary, okay, the countries like the Spain. यहाँ भी इस सब चीज़ें की बातें हो रही थी, और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं दिस सोसाइटल चेंज, दिस न्यू आइडियाज created, or you can say paved the perfect background for the new ideas or the developers, or you can say thinkers, that is the liberals, radicals or the conservative. आप देखोगे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोसाइटल चेंज का ही प्रभाव था कि हमारे इंडिया में ना, और इंडिया ऑल्सो वी हैव सम लीडर्स लाइक द अभी एक दिन पहले, कल ही, ईश्वर चंद विद्यासागर, he was a kind of a social reformer. Raja Ram Mohan Roy, there is your Vivekanand. These new ideas, these new broad-minded people have emerged because they have learned, they have read about the societal change in the France and also across the Europe. Okay,
सो तीन आइडिया उभर के आते हैं, एक आते लिबरल्स, रेडिकल्स और कौन आते कंजर्वेटिव। नाउ हु आर द लिबरल्स? देखो लिबरल्स, let me tell you about this liberals and about this conservative, again you are going to read in the class 10। आप क्लास 10 का जो फर्स्ट आपका जो लेसन होगा ना, वहाँ पे आप लिबरल्स और कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ोगे, पर अभी हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से जानते हैं, लेट व्हाट इज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव। So liberals by the name it is suggesting and it is clear that they are independent, right? They want a freedom, हम लोग बोलते हैं ना हमें लिबर्टी चाहिए, right? Or and I think we all have listened this word liberty, fraternity, and one more thing, liberty, fraternity, and I think that secularism, right? Something this these three words have emerged from the French Revolution। तो liberals कौन थे? liberals वो लोग थे those who are tolerance to religion, tolerance to all religion, right? Tolerance to all religion, don't worry boys to or girls, within the 2-3 days or within the 3-4 days I will upload the second part, and within the week or 8 days we will complete this entire this chapter, okay? So liberals, who were the liberals? Who were the tolerance to all religions and opposed uncontrolled power of dynasties, wanted to safeguard rights of individual against the गवर्नमेंट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इट मीन्स लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो लोग थे जो हर धर्म के प्रति, हर वर्ग के प्रति टॉलरिज्म के साथ पेश आते थे, है ना, उनको वो रिस्पेक्ट करते थे। एंड दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर्स लाइक द किंग्स, लाइक द मोनार्क्स, द डायनेस्टी, एरिस्टोक्रेसी, राइट। और वो चाहते थे कि एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव देयर इंडिविजुअल राइट्स, मस्ट देयर, उनका राइट्स जो है वो बचा के रहे, उनको सहेज कर उनको मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें लिबरल्स थी। जैसे कि मैं बता दूं, जब से आपके इंसेटिव बुक में दिया हुआ है डेट द टॉलरेंस टू रिलीजियंस, राइट। जैसे आप पढ़ोगे कि एक वर्ड आया है कि दे वर द टॉलरेंस टू रिलीजियंस, बट अमॉन्ग इन द यूरोप देयर वर टू काइंड ऑफ रिलीजन चल रहे थे। जैसे कि एक जो ब्रिटेन थे, यू नो, दे आर द फॉलोअर ऑफ, दे आर द फॉलोअर ऑफ द, इट मीन्स द पीपल ऑफ ब्रिटेन, दे आर द फॉलोअर ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट। They are the follower of Christianity, and however the same Christianity clan, or the you can say the same Christianity group of people, you know, they who are staying in the Hungary, Spain, they were also the Christian, but they were the Catholic Christian. Now might be sometimes in your for the highest examination, or maybe in your to if the examiner want to trick you, they can ask that what is the difference between the Christianity and the Catholic Christianity। The thing is very simple, ध्यान से सुनना, right? And this term is related with the, this term is related with the liberals, this term is related with the liberals, okay? Christianity, it means the Catholic Christian is a part of a Christianity, ध्यान से सुनना। Those who are the Christian, right, they were the worshipper of, or they were the follower of the Lord Jesus। They believe that the church is the only medium, church is the only medium to propagate or to connect with the God। यानी परमात्मा से मिलने का, उस परमात्मा से मिलने का एक कोई रास्ता है तो वो चर्च है, और वो यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट को पूछते थे, उनको वो फॉलो करते हैं, उनको वो मानते थे। और जो कैथोलिक जो क्रिश्चियन होते हैं वो कौन होते हैं? they were also the Christian, but they believe, you know, they are not bound to worship the Jesus Christ, rather they believe the ideas and the writings or the testament, for an example Bibles, you know, they were you can say following, or they are highly influenced by the ideas of Bible, by the idea of Bible, and they believe the Bible as the ultimate source। वो क्या, और इसी वजह से देखोगे कि आप जब भी क्रिश्चियन चर्च में जाओगे वहाँ आपके क्रॉस का साइन मिलेगा, राइट, जीसस क्राइस्ट मिलेंगे। बट इफ़ यू गो इन द कैथोलिक चर्चेस, जो कैथोलिक चर्चेस होते हैं वहाँ पे मदर, जो उनकी जीसस क्राइस्ट की जो माँ थी मरियम, उनकी फ़ोटो मिलती है, उनकी तस्वीर मिलती है, और वहाँ पे बाइबल पढ़ाया जाता है। जबकि आप क्रिश्चियन चर्च में जाओगे तो वहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा? वहाँ पे आपको द टीचिंग्स ऑफ यू नो लॉर्ड जीसस, उनके चमत्कार, उनके अच्छाई, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। और कैथोलिक चर्च में आपको मरियम की चीज़ें बताई जाएगी, बाइबल्स हमें क्या सिखाता है वो उसकी बातें बताई जाएंगी, उसके आइडियाज बताए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें difference है between the Christianity and between the Catholic Church। Now, can you name the one famous Bollywood celebrity who belongs from the Catholic Christian community? And she, I am giving you the hint, and she is the wife of Ritesh Deshmukh। नाम लिख के मुझे बताना कौन है, या मैसेज करके बताना who
who is the wife of Ritesh Deshmukh and she belongs from the Catholic Christian, right? तो उसी तरह जो लिबरल्स थे वो टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन्स तो थे, बट साथ साथ वो उन्होंने उन्होंने सब धर्म को मानते थे, बट कहीं ना कहीं ब्रिटेन में उस वक्त के ज़माने की यूरोप में ये दो प्रकार की जो जो यू कैन से डिफरेंस देखी जाती थी वो मिलती थी। डैट इज, एक तो क्रिश्चियन लोग थे, एक थे कैथोलिक क्रिश्चियन थे। हाउएवर एक आइडिया इमर्ज किया आया जिसको हमने कहा लिबरल्स, दे वर टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन्स, opposed uncontrolled power of dynasties, wanted to safeguard and rights of individual rights against the government. Now let's see the next slide. Now, liberal argued for liberals argued for representative elected parliament and subjected to laws. They want, उनकी जो मांग थी कि हम हमें क्या होना चाहिए, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल होना चाहिए, यहाँ राजा का बेटा राजा बनेगा या फिर डिवाइन राइट रहेंगे, ओल्ड रिजाइम से जो सिस्टम चली आ रही है, दिस शुड नॉट बी वर्क हियर, वी नीड आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमें अपना प्रतिनिधि मंडल चाहिए, हमारा एक नेता होना चाहिए, और हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हो, जो कानून हो, इट शुड बी सब्जेक्टेड टू द बाय द पार्लियामेंट एंड इट शुड सब्जेक्टेड टू द लॉ, यानी वो कानून के हिसाब से चलनी चाहिए। बट हाउएवर वी नो दैट इफ समथिंग इज हैविंग द प्रोज, वहाँ पे कॉन्स भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ कॉन्स भी थे लिबरल्स में। वो क्या थे, दैट दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स, और उनमें कुछ खामियां थी। वो खामियां ये थी दैट बिलीव्ड इन वोटिंग राइट्स टू प्रॉपर्टी टू मैन, यानी जो वोटिंग राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हक के लिए अधिकार है, वो सिर्फ मेन के होनी चाहिए थी। अपोस्ट वोटिंग राइट्स टू वुमेन, राइट, अपोस्ट वोटिंग राइट्स टू वुमेन। तो ये दोनों चीजें जो थी, जो लिबरल्स को यू कैन से काइंड ऑफ ड्रॉबैक, राइट, और यू कैन से दैट व्हाट आर द कॉन्स ऑफ द लिबरल्स which existed during the societal change or during the phase of socialism. So you can say that they were not democrats, believed in voting rights to which is property to men, and opposed voting rights to women. Okay, अब द नेक्स्ट टर्म जो आती है रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब क्या होता है, कट्टरवाद, राइट। अब लिबरल्स जो हैं, जो कि इनकी सोच बड़ी होगी, बड़ा सोचेंगे, हर चीज को आज़ादी के तौर पे देखेंगे और खुला के तौर पे देखेंगे। रेडिकल्स कौन थे, रेडिकल्स वो लोग थे दोज हु वांटेड एनीथिंग एट एन एक्सट्रीम, यानी अगर आज़ादी चाहिए तो वो हद तक आज़ादी चाहिए, और अगर मुझे गुलामी करनी है, अगर मुझे किसी चीज को सप्रेस करना है, तो आई विल डू द आई विल क्रॉस द लिमिट ऑफ द सेपरेशन। इस ऐसे लोगों को रेडिकल्स कहा गया, यानी उनके लिए आज़ादी बोले तो बियॉन्ड आउट ऑफ द कंट्रोल एंड द यू कैन से सेपरेशन, या किसी चीज की अति बोलते हैं ना रेडिकल्स, कट्टर, इसी को कट्टर कहा गया, कट्टरवाद इसी को बोलते हैं। कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ एनी कम्युनिटी और एनी गॉड, तो यू विल डू द वर्शिप, यू विल डू द पूजा पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गॉड, और आप दूसरे गॉड को मानोगे ही नहीं, उनको दरकिनार कर उनको दबाओगे, तो आप रेडिकल्स कहलाओगे, राइट। तो रेडिकल्स जो ग्रुप जो इमर्ज बन के आया, वो क्या थे, वो चाहते थे वांटेड अ गवर्नमेंट, बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। उनका मानना था कि भाई जो सरकार जो बननी चाहिए वो ना तो एरिस्टोक्रेसी के हाथ में जानी चाहिए, या फिर जो चीज़ें राजा जो है उनको अगर हटाया जाकर कोई दूसरी गवर्नमेंट आए, तो वो किसके बेस्ड पे हो, वो बेस्ड पे हो कंट्री पॉपुलेशन में। क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा था एट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 80 to 90% ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो कौन से स्टेट्स की थी, वो थी आपकी थर्ड स्टेट की, राइट। तो इनका मानना था कि भैया जो गवर्नमेंट बने या फिर जो सब लॉ बने, इट शुड बी सब्जेक्टेड टू द कंट्री पॉपुलेशन, राइट। This supported women's suffragette movement, right, they supported the women's suffragette movement। उनमें एक चीज अच्छी थी कि they supported the movement, right, suffragette मतलब होता है those who fight for the voting rights for women, right। So they supported women's suffragette movements, opposed privileges of wealthy factory owners and landlords, they were not against existence of private property but disliked of wealth in few hands, यानी वो चाहते थे कि जो सफ्रेजेट मूवमेंट खत्म हो, यानी वो शुरू होनी चाहिए। अपोस्ट प्रिविलेजेस ऑफ वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, उनका मानना था कि जो वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स है और उनके जो हक दिए गए हैं, उनके जो पास राइट है, दे वर वेरी रिच, इट शुड नॉट बी राइट प्राइवेट। बट उनमें एक चीज और थी दैट दे आर अपोजिंग द वेल्दी फैक्ट्रीज, बट साइड बाय साइड दे आर नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स। इट मीन्स दोज हु आर द रिच, दोज हु बिलोंग्स फ्रॉम द नोबल्स, राइट, यानी जो रिच हैं, जो रिच है, जो बिजनेसमैन है, उनको वो रिवोल्ट नहीं करते थे। बट कुछ ऐसे लोग थे, बट डिसलाइक्ड ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, बट ऐसे ही जो कुछ प्रॉपर्टी ऑनर थे, जो बिजनेस क्लास पीपल थे,
they were against them. So you can say that they were different mindset. एक तौर पे वो मेजोरिटी की बात करते हैं, one side they wanted a government based on the majority, one side they supported the suffragette movements or suffragette movement. Side by side they are opposing the wealthy factory owners because उनका मांगना था कि वो पब्लिक का, आम जनता का शोषण करते हैं। और उसी तरह से वो क्या कर रहे हैं, they were against the private property, but side by side they are supporting the wealth in the few hands. It means they are not decided, we can say, right? That's why they are known as the radicals. कुछ करेंगे तो एक्स्ट्रा करेंगे, एक्सट्रीम करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दो ग्रुप के बारे में हमने जाना, एक हमारे थे that is the liberals, second हमारे थे radicals. Now let's see who were the conservatives. कंजर्वेटिव्स कंजर्वेटिव्स कौन थे? इनको हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता, या फिर रूढ़िवादी मानसिक से जो मानसिकता से जो इन्फ्लुएंस रहते हैं। Whenever I talk about the conservatives, they believe that जो चीज़ें हो रही हैं, जो चलती आ रही हैं, who is going, the things which is going on since from ages, it should not be changed. ओके उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए। यानी राजा का बेटा अगर राजा बनता है तो वो सही है, क्योंकि उसको डिवाइन राइट्स मिला है, ये गॉड्स की विल है और वो अच्छे से रन कर पाएगा। ओके, दे डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ चेंज। ऐसे लोग कंजर्वेटिव्स कहलाते थे, यानी जो पुराने ख्यालातों से, पुरानी ट्रेडिशन में, स्पिरिचुअलिटी में बंधे होते हैं। ओके, सो देखो इसी वजह से मैंने लिखा है दैट कंजर्वेटिव्स वर द पीपल who earlier opposed the idea of change but later accepted some changes. शुरू में क्या करते थे, वो उसके बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल नहीं मानते थे, और उनका अपनी धारणा थी that we should not change the system of the society. इनका मानना था कि हमें सोसाइटी के सिस्टम चेंज नहीं करना चाहिए, बट समय बीतते बीतते they accepted some changes. Believe in, as I said, believe in preserving and respecting the past, and though they wanted a change but at a slow pace, right? जैसे कि मैंने बताया, they believe in the age old tradition, they believe in the age old the things which continue to happening from the past. Okay, बट दे थॉट कि चेंज तो आएगी भैया, लेकिन हम उसे एक झटके में नहीं बदल सकते, रेवोल्यूशन लाने के हम लोग तौर पे हम लोग उसे नहीं बदल सकते, वो अपने आप चेंज आएंगे एट अ स्लो पेस। ओके, सो ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी? ये सारी चीजें तब हो रही थी जब यूरोप में सोशलिज्म का दौर चला और एक सोसाइटल चेंज के तौर पे गुजर रही थी। सोसाइटी वाज गोइंग अंडर द विच चेंज, अंडर द सोसाइटल चेंज। ओके, अंडर द सोसाइटल चेंज। नाउ हियर you can say, अब इसी बीच under this societal change, what happened during the 18th or 19th century, Europe also witnessed the biggest industrial revolution। और उसी को वहाँ पे सोसाइटी, और इसी समय वहाँ पे क्या आया रशिया में और दूसरी यूरोप के पार्ट में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और एक सोशल चेंज आया। एज by the name it is suggesting the industry, right? I am using the word industrial, it means वहाँ पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगने शुरू हो गए। अब क्या हो गया, तो इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। नाउ लुक हियर, टाइम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, न्यू सिटीज रोज अप विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया, राइट? आपको मैं बता दूं 1850 के आसपास, राइट, 1850 के आसपास, और यू कैन से इन द बिटवीन 18th to 19th सेंचुरी में यूरोप विटनेस द बिग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और जिसके तहत ही हमारे देश में, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, द जूट दैट जूट फैक्ट्रीज, ओके, द introduction of the tram, introduction of the telegraph, or the introduction of the railways, it was established by the phase or by the change which was started in the Europe during the industrial revolution। तो उस अब क्या होती है, कुछ समय बाद वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आती है, और वो क्या क्या बदल के रख देती है, वो वहाँ का सोशल लाइफ और इकोनॉमिकल लाइफ पे खासा इफेक्ट करती है। ओके, वहाँ उससे क्या होता है, एज दे आर इफेक्टिंग द न्यू सिटीज emerged up, new cities rose up, okay, new cities बनने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, though the factory had established, now if the factory had established, the factory needs a men, women and children because they wanted a labor, they wanted a manpower। और ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी आम जनता के द्वारा, right? It means from the majority of the population। As a result,
The industrial revolution, as a result, the industrial revolution, just created a perfect platform for the people of men and women to work in the factories, and they got the employment. But if this is a positive side of industrial society or the industrial revolution, there was a negativity also. What was the negativity? The negativity was that there was the long working hours with low wages. Okay, low demand of industrial goods led to the unemployment. अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना. It is very simple that if there is the industrial revolution is going on, the people, the capitalists, those who were rich, those who were very very wealthy, if they would establish the industry, it means they need more workers, they need more women's. But side by side, it is also known to us that the land is what, that the land is fixed. Land is fixed. लैंड तो उतनी मात्रा में ही है, लैंड उतनी मात्रा में ही है, और न्यू सिटीज भी स्टेब्लिश हो रहे हैं. लोग गांवों को छोड़कर, अपने नेटिव प्लेसेस को छोड़कर, दे वर मूविंग इन द सिटीज, and within these cities the industry is industry had been established. साइड बाय साइड द पीपल वर मूविंग. इट मीन्स लैंड की जमीन फिक्स्ड है. एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वहां पे बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन होने लगा. साथ साथ क्या होने लगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिमांड इतनी बढ़ गई, लोग इंडस्ट्रीज के पीछे इतने दीवाने हो गए, और जो इंडस्ट्रीज ओनर्स थे दे वांटेड मोर एंड मोर आउटपुट यू कैन से, और गुड्स. वहाँ के लोगों से लंबे लंबे वर्किंग आवर्स वो करने लगे, बट दे वर गिविंग द वेरी लो वेजेस. लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट. कुछ समय बाद ऐसा आया कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी टेल यू दैट इफ somebody had opened let us assume, right, let us assume that you have opened the hat factory. आपको देखा देखी मैंने भी, I have also established the hat factory. It means you are also producing the hat, I am also producing the hat. तो ऐसे क्या हो गया कि मुझे जो लोगों को हैट मेरे आपके यहाँ से भी मिल रहे, मुझसे भी यहाँ मिल रहे. इससे क्या हो गया, मार्केट में हैट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई. एज ए रिजल्ट इंडस्ट्रियल जो हैट की डिमांड थी वो क्या हो गई, वो कम हो गई. विच रिजल्ट्स नथिंग, नॉट मोर देन द व्हाट, विच रिजल्ट्स एज एन अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, सो ये सारी चीज़ें यानी सोसाइटल चेंजेस के बाद यूरोप में ये सारी चीज़ें एक और खास थी. तो ये सारी चीज़ें कब हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है सोशलिज्म जब यूरोप के समय में आ रहा है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन जो इन्हीं सब कारणों के बाद की वजह से आएगा. ओके, so these are the things which we have clear. I hope it is clear to all of you that during the societal change, low working hours with low wages, low demand of industrial goods led to the unemployment. Rapidly growing towns faced housing and sanitation problem. As I said, that the land was fixed, but the people were moving, okay, from their native places, right, and factories had been emerging day by day. As a result, लोगों को sanitation की problem होने लगी, रहने खाने का दिक्कत आने लगी, साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट तो थी. अब जो वहाँ के जो न्यू आइडियाज, जो फिलोसोफर्स, जो थिंकर थे, दैट इज द लिबरल्स and the radicals, they thought that we should work around this issue, and as a result what they have did, they have rallied around these issues and wanted a change. उन्होंने सोचा कि भैया हमें कुछ करना पड़ेगा. ओके, नाउ द लिबरल्स एंड रेडिकल्स वेर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड द एम्प्लॉयर्स. बट उसमें जो सबसे बड़ी बात उनके लिए उन्होंने इसलिए सोचा, और जो उनकी परेशानी भी थी, कि जो लिबरल्स और ऑनर्स थे वो एक दे वर द वेल एजुकेटेड क्लास, यू कैन से they were the thinkers, philosophers, so they were the also the property owners, and और कुछ ऐसे थे जो उस फैक्ट्रीज में हाई रैंक पे एम्प्लॉयर्स भी थे. तो उनको टेंशन होने लगी ये सिचुएशन देख के, इसलिए उन्होंने सोचा कि लेट अस रैलीड अराउंड दिस इशू एंड लेट अस ब्रिंग अ चेंज. ओके, so now what they had thought, that they thought that we must, that they should oppose, what they should oppose, they should oppose the privileges given by birth and believed in the value of effort, labor and enterprise. उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो ये जो प्रिविलेजेस आ रहे हैं, यानी जो और जो वेल्दी जो फैक्ट्री ऑनर थे जो हमसे भी रिच है, उनको हम जो एरिस्टोक्रेसी जो चल रही है कहीं ना कहीं उसको हमें बंद करना चाहिए. एंड वी शुड स्टॉप द प्रिविलेजेस गिवन बाय बर्थ, एंड वी शुड बिलीव इन द वैल्यूज ऑफ एफर्ट, लेबर एंड इंटरप्राइजेस. और हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि कोई यहाँ की जो फैक्ट्री ऑनर्स है वो सिर्फ वो सिर्फ रीच नहीं रहेगा. वी शुड, द कॉमन पीपल शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड, दे शुड ऑल्सो गिव द एफर्ट,
दे शुड ऑल्सो डू द लेबोरियस वर्क, और उनको भी अपना बिजनेस, उनको भी फैक्ट्री ओनर्स बनना चाहिए, राइट उनको भी अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना चाहिए, बिकॉज इफ दे विल डू, दे विल दे विल, हो सकता है उनका अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, सैनिटेशन की स्थिति सही हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि द लैंड वाज फिक्स्ड। बट दिस थिंग्स वेयर इमर्ज्ड बिकॉज, ऐसा किसके माइंड में आया, ऐसा माइंड में आया लिबरल्स और रेडिकल्स के माइंड में। अब देखिए, अब जो क्या थी, ये चीजें सुधर नहीं रही थी, और उनका जो मानना था, जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, उनका मानना था कि अगर if we should oppose the privileges given by the birth, and if the common people should give their effort, and if they will do the labor, if they would establish as an entrepreneur, or that if they will made a business, maybe their condition will be good, but the condition become more worse because the people were facing the sanitation problem, the factory owners were exploiting them, the salary was quite low, the salary was low, okay, the people were facing the sanitation problem, and these are the conditions. So as a result, people ने सोचा कि भैया this should not be work. Now नेशनलिस्ट, अब क्या होता है, यही लिबरल्स, नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड अ रेवोल्यूशन, उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वी शुड डू द रेवोल्यूशन, एंड वी शुड वर्क फॉर द इक्वल, वी शुड वर्क फॉर द इक्वल, वी शुड वर्क फॉर द इक्वल राइट्स। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा, डेट वी शुड डू द रेवोल्यूशन, ओके। तो जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोग थे, लिबरल्स थे, वांटेड अ रेवोल्यूशन, एंड और साथ साथ क्योंकि उन्होंने दे हैव ऑलरेडी सीन व्हाट, दे हैव ऑलरेडी सीन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन्हें देखा किस तरीके से ओल्ड जो डिस्पॉट किंग था लुईस 16, जो बर्बन फैमिली चली आ रही थी, इट वाज ओवरथ्रोन। सो दे थॉट कि यहाँ भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो आया, बट साथ साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लस रशिया की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो जार्स थे, दे वर ऑल्सो, यू विल रीड अबाउट दैट, जार्स थे, वो भी अपना मन माना कर रहे हैं। तो दे हैव थॉट दैट वी शुड डिमांड फॉर द रेवोल्यूशन, and not only in the Russia, this idea had gradually spreading in the other parts of the Europe, that is the France, Italy, Germany also wanted to overthrow the existing government, that is the France, Italy, Germany and Russia wanted to overthrow the existing governments. So this thing happened in the industrial revolution, और इस तरह की चीजें मन में आई किसके, जो रेडिकल्स थे, जो लिबरल्स थे और जो नेशनलिस्ट थे। अब देखिए, अब सोशलिज्म इन यूरोप कैसे आता है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। Now, socialism is an idea attracted attention in Europe by the mid 19th century, right? By the mid 19th century, this idea have attracted, and it opposed, यानी ये सोशलिज्म मतलब क्या होता है, समाजवाद या फिर समाजवादी सोच, यहाँ everyone should be equal, and everyone would have the right to gain the freedom, okay, to do the right work. So they opposed the private property, it opposed the private, here I am writing the short form PRVT, it opposed the private property and supported collective social interest. उनका मानना था कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए फैक्ट्रीज रन करा रहे हैं, those who were only running the factories and different, that what should I say, uh, that industries for their own interest, because they were gaining the money, right? We should stop them, and we should oppose the private property, and we should work for the collective social interest, जो समाज की का जो मांग है, जो यूरोप की जो करेंट सिचुएशन है, रशिया की जो करेंट सिचुएशन है, बाय सीइंग दैट वी शुड वर्क एंड वी शुड अपोज द प्राइवेट ओनर, एंड और इसी को क्या बोला गया, इसको बोला गया सोशलिज्म, ऐसे सारी चीज़ों को सोशलिज्म बोला गया। प्रॉपर्टी पीपल वेर कंसर्न्ड अबाउट पर्सनल गेन्स एंड नॉट अदर्स, एज आई सेड, राइट? द प्रॉपर्टी पीपल थे, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, जो किंग्स के लोग थे, जो नॉबल्स थे, right? They were only thinking about their own personal interest, they were not thinking about the social interest, okay? अब तो फिर उन्होंने क्या किया, अब इस बीच इनको पर्सनल इंटरेस्ट को चूंकि सोशल इंटरेस्ट लाना था, तो इन सब चीज़ों को ना रेडिकल्स ने सोचा, या फिर आप बोल सकते हो जो लिबरल्स थे उनके दिमाग में आया, जो नेशनलिस्ट थे उनके दिमाग में आया, that let us run the cooperative society, let us run the cooperative society. I think cooperative society was first, this cooperative society was first ideated by the Robert Owen, I think, right? अब मुझे बताना कौन है वो लोग।
तो उसको बंद करने के लिए उन्होंने क्या किया, एज ए रिजल्ट द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी emerged up. They believed that the cooperatives should work as an association that produced goods together and should divide the profit among them. उन्होंने सोचा जो फैक्ट्री ओनर हैं, जो रिच हैं, जो किंग्स के लोग हैं, वो तो अपना फायदा देख रहे हैं, समाज के हित का सोच ही नहीं रहे हैं. तो लेट अस कोऑपरेट ईच अदर, यानी लेट अस सहयोग, एक एक दूसरे को सहयोग करते हैं, अपना हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इन आवर इंडिया वी हैव द बिगेस्ट कोऑपरेटिव kind of a firm or a industry, that is the Amul, the taste of India. अमूल दूध पीता है इंडिया, राइट. सॉरी. सो आपने देखा होगा. तो ऐसे ही कुछ आइडिया आया कोऑपरेटिव के, राइट. और इसी तरह से द कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज इमर्ज, और उनका मानना था कि इफ वी वर्कड एज द कोऑपरेटिव सोसाइटी and if we worked as an association, and the goods which we would produce, we should divide the profit, we will sell together and we should divide the profit among them. ऐसे क्या होगा, हम सबका भला होगा. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, किंग्स जो थे, राजा के जो लोग थे, जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे, जो मर्चेंट्स, जो रिच, जो वेल्दी ओनर्स थे, they were establishing the factory by the name of industrial revolution, but they are not thinking about the social interest. They are only fulfilling their pocket. So एक नई सोच आई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, इमर्ज हुई. और वो सोच किसकी थी, वो सोच थी बिकॉज ऑफ सोशलिज्म, जो 19th सेंचुरी में टच किया यूरोप को, जैसे कि मैंने बताया था आपको. ओके, नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. और इसी तरह से वेल नोन पर्सनैलिटीज लाइक कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स एडेड देयर आइडिया, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में. और ये प्राइवेट जो प्राइवेट ओनर्स थे एंड दैट वेल्दी ओनर्स थे, they are not thinking about their about the social interest, about the welfare of the people. जो कार्ल मार्क्स थे, he is one of the you can say the biggest economics, the philosopher, okay, and the well known person of the world. I think Karl Marx is from the Germany. You just Google check once. ओके, सो उस वक्त के जो यूरोप के जो प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज थी, जैसे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, उन्होंने अपने आइडियाज दिए कि आखिर ये है क्या. उनका कहना था, मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट. देखो, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो चल रहा था, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हुई, उनका कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो क्या थी, वो कैपिटलिस्ट की सोसाइटी, यानी रिच ओनर्स, पूंजीपतियों की सोसाइटी थी, जो हु वर हैविंग द मच मनी. तो मार्क्स ने बोला that the industrial society was a capitalist. He believed that the workers had to construct a radical socialist society where all property should socially controlled. और उनका कहना था कि जो रेडिकल्स हैं, जो आज की पीढ़ी है, उस वक्त की जो पीढ़ी थी, जो कॉमन पीपल है, दे शुड वर्क एज अ कोऑपरेटिव, दे शुड वर्क एज एन एसोसिएशन, एंड दे शुड build a very strong radical society, radical association, which will work socially and which will work for the welfare of the people. It means he is directly attacking or against the capitalist, and these capitalists are none other than but the industrialist, राइट. ये कौन थे, ये सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पूंजीपति थे, है ना. पूंजीपतियों जो थे, जो रिच थे, जो राजा के लोग थे, जो जार्स के लोग थे, है ना, उनके अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि अगर सोसाइटी को सुधारना है तो एक एसोसिएशन बनाई जाए. एक आम लोग, तुम जो कॉमन पीपल हो, दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड established or they should formed a new society which is concerned about the welfare of the people, about the social interest of the people, and these things happen. Okay, तो ये थ्योरी किसकी थी, ये थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की. and he supported a kind of socialism. अब देखो सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म में कैसे आता है, सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म में कौन, इस सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में कैसे और आगे होती है, क्या चीजें बनती है, क्या घटना होती है. That spread of socialist ideas through Europe led to the formation of a body named Second International. यानी यूरोप में सोशलिज्म की जो ये डिमांड थी, जो कार्ल मार्क्स की जो जो उन्होंने बात कही थी, या फिर जो हमारे वेट हमारे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग थे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहते थे, ये सब सोशलिज्म के ही बुद्धि या फिर उनके आइडिया की वजह से वो ऐसा कर रहे थे. तो इनको सपोर्ट करने के लिए एक अलग प्रकार का बॉडी फॉर्मेशन किया गया, जो सोशलिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस थे, हु वर नोन एज द सेकेंड इंटरनेशनल.
and as a result several associations and the parties, small parties were formed, like association of workers like Social Democratic Party and Labour Party began to be found in England and Germany to improve वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। अब इन सारी चीज़ों में लोगों में कौन थे? इन सारी चीज़ों में लोगों में थे जो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहते थे, यानी जो कॉमन पीपल्स थे। ओके, जो हमारे लिबरल्स थे, ऐसे कुछ रेडिकल्स थे जिनका सोच का दायरा बहुत बड़ा था। तो ऐसे कुछ जो जो कोऑपरेटिव एसोसिएशन फॉर्म करना चाहते थे। सो एसोसिएशंस ऑफ वर्कर्स formed a party like Social Democratic Party and Labour Party in England and Germany, right? Funds too began to be raised to help members, workers in difficult times. Okay, demand for where it is? Demand for reducing hours and also demanded the right to vote. Okay, so as we have seen that the support for the socialism spreaded all over the Europe, and we witnessed the formation of a small political parties like the Social Democratic Party, Labour Party। इन्होंने फंड्स इकट्ठे किए, मेंबर्स की जो जिनकी हालत खराब हालत थी उनकी मदद की डिफिकल्ट टाइम्स में। ओके, डिमांड फॉर वोट, डिमांड फॉर रिड्यूसिंग आवर्स एंड ऑल्सो डिमांड टू राइट टू वोट, एंड दिस इज हाउ द आइडिया ऑफ सोशलिज्म spread in the Europe. I hope up to this you have understood. Okay, and you have a clear idea about the what about the liberals and other things, that is the conservatives and all and everything. I hope it is all clear to uh, everyone, and I hope that you have understood this topic. Now in the next slide, in the next class I will complete the other portion. Till then, keep loving, keep sharing, and do watch this video. Within the 2 days you will get the part 2. This is the part 1. Here once again I am quitting up. This is once again your educator Anup Kumar Singh. Stay safe, stay healthy, and have a nice weekend ahead, my dear students. And by this night, I mean by today, I'm going to post one another video which is very interesting, and which is, you can say, burning video. If not today, by tomorrow you will definitely get it. So please check out, and if you have any query, any doubt, hit me up on my email or on my WhatsApp. Till then, stay safe and stay healthy.